مدر کا ڈے ہے. ٹھیک ہے، اس کا جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے نیکسٹ کھولیں. جی ہاں رضوانہ، آپ بتائیں اسماء الاعراب کون کون سے ہوتے ہیں؟ فتح، کسرہ اور ضمہ. ان کو علامات کہتے ہیں، سائنس. اعراب، ہوں، ہاں اسماء ہاں. الاعراب کا مطلب ہے اعراب کے نام. فتح وہ نصب. ہم؟ کسرہ. نو، کسرہ علامت ہے. کسرہ علامت ہے. آ، آ، ٹھیک ہے آمینہ آپ بتائیں. مرفوع، منصوب، مجرور اور مجزوم. یہ القاب ہو گئے. ان کے نام کیا ہیں؟ اسما وہ کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر رفع، اور جزم. نصب، جر، جزم. مجرور. احسنتی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ رفع کون سے سائنس سے، کس سائنس سے رفع شو ہوتی ہے کہ یہ رفع ہے، یہ مرفوع ہے یہ ورڈ؟ رفع پیش سے. ضمہ ضمہ. عربک میں بولیں گے آپ، ٹھیک ہے، ضمہ. ضمہ سے. ٹھیک ہے. نصب کون سی سائنس سے، کون سی علامت سے شو ہوتا ہے کہ یہ نصب ہے؟ فتح. 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 فتحہ. فتح. احسن تم. جی ہاں اب آیت بتائے گی کہ جو جر ہے وہ کس علامت کو شو کرتا ہے؟ میم کسرہ. کسرہ. احسنتی. اور جزم؟ سکون، سکون کی علامت سے. سکون کو. ہاں احسن تم. آپ سب نے بہت اچھا بتایا. ہاں ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے القاب الاعراب. ٹھیک ہے، القاب یعنی ان کو کن ناموں سے بلایا جائے گا، کن کو اسم اور فعل کے اوپر اگر وہ جن حالت میں ہوتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اعراب کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ ایک منٹ. وجیحہ اشفاق آپ بتائیں گی اعراب کس کو کہتے ہیں؟ وجیحہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی میم. بتائیے گا میرے، میں نے جو کوشچن کیا. میم مجھے بس اسکپ ہو گیا مائنڈ سے، میں نے پڑھا تھا پتہ نہیں. اوکے اوکے نو پرابلم، اگین آپ ریوائز کیجیے گا. اچھا ان کے علاوہ اور کون ہے؟ طاہر. طاہر آپ بتائیں گی کہ آپ یہ کون سی اعراب کا کیا مطلب ہے، کیسے ڈیفائن کریں گی آپ ان کو؟ اعراب کا مطلب اعراب عرب کا جمع ہے. علامت کو کہتے ہیں زبر، زیر، پیش اور جزم کو کہتے ہیں. نہیں، غلط لیا آپ نے کنسپٹ. ان کے میں علاوہ کون؟ کچھ دیر کے لیے میوٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے آپ بتانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں ساجد. اعراب اصل میں اسم کے آخری حرف کی بدلتی حالت کو اعراب کہتے ہیں. مطلب جو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کے آخری حرف کی بدلتی حالت. کافی حد تک صحیح بولے آپ نے. احسن تھا، احسن تھا. جی ایسا ہی ہے. اعراب کہتے ہیں کسی بھی جملے کے اندر ان ورڈز کو جو میں بول رہی ہوں ان کو اپنے ایسے ہی انہی الفاظ میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو دہرائیں 4 سے 5 مرتبہ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو 4 سے 5 مرتبہ دہرائیں، آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اعراب کہتے ہیں جملے کے اندر کسی بھی لفظ کی، ٹھیک ہے، لفظ کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو، پوزیشن کو جو شو کرتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کھولیے گا آمینہ شروع میں. اوکے میم. بالکل سٹارٹ پہ چل جائے. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، الاعراب هو نظام علامات یستخدم لتحدید ادوار الکلمات فی الجملہ. کہ اعراب وہ سسٹم ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ جو کلمات ہوتے ہیں، جو جملے کے اندر جو ورڈز یوز ہوتے ہیں نا،
ان کے ان کو اسپیسیفک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا رول بتاتا ہے، ان کا رول بتاتا ہے، اور وہ رول کس کے ذریعے بتاتا ہے؟ علامات یوز کرتے ہوئے. یعنی اعراب وہ سسٹم ہے جو جملے کے اندر ورڈز کا رول بتاتا ہے بائی یوزنگ اعراب، ٹھیک ہے، بائی یوزنگ سمبل سائنس. وہ سائنس کون سے ہیں؟ وہ علامات کون سی ہیں؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ، ٹھیک ہے. اعراب اس سسٹم کا نام ہے. اب ان اعراب کچھ نام ہیں، ان اعراب کے نام کیا ہیں؟ اسماء الاعراب ان کو کہتے ہیں. عربک میں اسماء الاعراب کیا ہیں؟ رفع، نصب، جزم، ٹھیک ہے. اور اب ہم پڑھیں گے القاب، ٹھیک ہے. القاب کھولیے گا. یہ ڈیفینیشن سب کو سمجھ آئی ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ کوشچن کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، میں پھر سے ریوائز کر دوں گی اس کے لیے. اوکے. اچھا میم، حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے؟ حرکات جو ہوتی ہیں نا، یہ فتحہ، ضمہ، کسرہ کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم، اعراب ہوتے ہیں یعنی وہ جو ورڈ جس کے اوپر فتح آ رہا ہے تو اس کی پوزیشن کیا بن رہی ہے جملے میں. اب کوئی بھی ورڈ میں لے دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کتابن، ٹھیک ہے، کتابن، جی کتابو کہہ دیتی ہوں، اس کو کتابہ کہہ دیتی ہوں، کتابی کہہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اب اس پہ کیا آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے کتاب کے آخری حرف پہ کیا ہے؟ حرکت فتحہ کی آ رہی ہے، فتحہ جی حرکہ ہے، جو ہے کیا ہے؟ کسرہ ہے اور ضمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ حرکہ، یہ حرکات کہلاتی ہیں. لیکن اعراب یہ ہوتے ہیں کہ میں جملہ لیتی ہوں، میں کہتی ہوں فتحت الکتابہ، ٹھیک ہے، فتحت ہم، الکتابہ. یہاں پہ یہ جو جملہ ہے جملہ فعلیہ ہے. اب یہاں پہ میں نے الکتابہ، الکتابہ ہی کیوں بولا؟ اس کو فتحہ کے ساتھ کیوں بولا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پوزیشن مفعول کی بن رہی تھی، مفعول، اور ہاں، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پہ منصوب فتحہ ہوتا آتی ہے، ٹھیک ہے. جی تو اعراب یہ کہلاتے ہیں کہ جو ورڈ کی پوزیشن ہوتی ہے نا وہ اعراب کے ذریعے شو ہوتی ہے. اب وہ اعراب ان کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب یہ جو میں نے کتابہ بولا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ہم، کو کہیں گی منصوب ہے یہ، ٹھیک ہے. اب منصوب جو ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، منصوب یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور سم ٹائمز منصوب الف کے ساتھ بھی شو ہوتا ہے. یہ آگے جا کے ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ جی علامات ہوتی ہیں، اس کے سائنز ہوتے ہیں جو نسب کو شو کرتے ہیں. اب یہ ان کے نام ہو گئے. تو یہ یاد رکھیے گا، اعراب جملے کے اندر کلمات کے رول جو ہوتے ہیں نا اس کو بتاتے ہیں. ان کو جو ہے وہ اعراب جو ہے نا وہ بتاتی ہیں. یہاں پہ اس کا رول کیا ہے؟ جب میں نے اس کو کہہ دیا الکتاب جو ہے وہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یا یہ جو ہے کلمہ جو ہے مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کلمہ جو ہے اگر اور بھی ہوتے ہیں نا وہ اسماء خمسہ اور اس طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان میں جی سے آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ منصوب آ رہی ہے، الف علامت اس کے ساتھ دو. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو اعراب ورڈز کے رول کو بتاتا ہے جملے میں. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. نعم. آئی ہوپ آنسر دا کوشچن. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں آج القاب. ٹھیک ہے، ہم کن ناموں سے بلائیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے، اب کن کو کن ناموں سے بلائیں گے؟ اسم اور فعل. ٹھیک ہے، اسم اور فعل کے اوپر اگر نصب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا جر آ جاتی ہے، یا رفع آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا جزم آ جاتی ہے، سوری، ٹھیک ہے، اگر اسم کے اوپر رفع نصب جر آ جاتی ہے تو اس اسم کو یا اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. ٹھیک ہے، اس اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب. اس اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم یا فعل کو مجرور. ٹھیک ہے، جیسے سوری، مجرور ہمیشہ اس ہے. اس فعل کو کیا کہیں گے ہم؟ مجزوم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتا رہے ہیں اب ہمیں کہ ہوا مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ هو الاسم او الفعل الذي تكون علامته الضمه او ما يقوم مقامها. کہ اسم مرفوع وہ اسم یا فعل ہوتا ہے جس کے اوپر علامت جو ہے وہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، پیش کی علامت ہے، اس کے علاوہ اس کے قائم مقام کوئی اور چیز ہو. جو قائم مقام کوئی اور سائن ہو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کچھ اور بھی سائن ہوتے ہیں جو رفع کو شو کرتے ہیں، مرفوع کو شو کرتے ہیں، مرفوع اسم کو یا فعل کو، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. فی الحال تک آپ نے اس علامات پہ رہنا ہے، فتحہ، ضمہ، کسرہ پہ. مرفوع کیا ہے؟ وہ اسم یا فعل ہے جو کیا کرتا ہے؟ وہ جو ہے وہ ضمہ کی علامت کو کسی اسم یا فعل پہ شو کرتا ہے. تو اس پورے اسم کو، اس پورے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع.
इसी तरह से मंसूब अविल इस्म हुवल इस्मु अविल फ़िअल लज़ी तकूनु अलामतुहु फ़तहा औ मा यक़ूमु मक़ामहा। मंसूब उस पूरे इस्म को या उस पूरे फेल को कहेंगे जिसके ऊपर फतहा की अलामत आती है, ठीक है, जबर वाली अलामत आती है। मजरूर, मजरूर सिर्फ इस्म होगा, इसमें फेल नहीं होगा, ठीक है, मजरूर सिर्फ इस्म होता है, फेल कभी भी मजरूर नहीं होता। मरफू और मंसूब इस्म और फेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन मजरूर सिर्फ इस्म होता है। जर यानी कसरा सिर्फ इस्म पे आती है, कभी भी फेल पे नहीं आती है। अल मजरूर वो इस्मुल लज़ी तकूनु अलामतुहु अल कसरा औ मा यक़ूमु मक़ामहा। मजरूर वो इस्म है जिस पे कौन सी अलामत आई, जेर की अलामत आई, कसरा की अलामत आई, ठीक है। अल मजजूम, अब मजजूम जो है वो सिर्फ फेल होता है, मजजूम कभी भी इस्म नहीं आता, ठीक है, इस्म कभी भी मजजूम नहीं होता है, ठीक है। हुवल फ़िअलु लज़ी तकूनु अलामतुहु अस्सुकून औ मा यक़ूमु मक़ामहा, कि वो मजजूम वो फेल होता है जिसके आखिर में अलामत साकिन हो, ठीक है, साकिन की अलामत हो, तो उसको हम मजजूम कहेंगे। हाँ, अब नीचे एक नोट है, हाज़िहिल अस्माउ वल अलक़ाबु तुस्तख़दमु लितहदीद मवाक़िअल कलिमात फ़िल जुमलति व लितहदीद वज़ाइफ़िहा अन्नहविय्या मिम्मा युसाइदु अला फ़हमिल मअना अद्दक़ीक़ लिल-जुमल बिल-लुग़तिल अरबिय्या। ये बताते हैं, ये कह रहे हैं कि ये अस्मा और ये अलक़ाब जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये मरफू, मंसूब, मजरूर, मजज़ूम, ठीक है, ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जुमले के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी पोजीशंस का हमें पता चल सके, किस पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, ठीक है, एक तो इसका ये काम है। और इनका जो है ग्रामेटिकली इनका क्या रोल प्ले हो रहा है, ठीक है, ग्रामेटिकली किसी भी वर्ड का जो रोल प्ले होता है वो एराब इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ग्रामेटिकली इनका जो रोल है वो हमें पता चल सके, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये जुमला इस्मिया है, यहाँ पे इसकी ये जो है ना मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रहा है, ये किससे पता चलता है, हमें एराब से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, मिम्मा युसाइदु, अब ये क्यों पढ़ा जाता है, ताकि ये हमें हेल्प कर सके, मिम्मा युसाइदु अला फहमिल माना अद्दकीक, ताकि इसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, जो जो दकीक मीनिंग्स होते हैं, दकीक मीन्स जो गहरे मीनिंग होते हैं, बारीक मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो हम समझ सकें, ठीक है। इन एराब के जरिए किसी भी वर्ड का कोई एक जो है ना वो इन डेप्थ मीनिंग बन रहा होता है, वो इन्हीं एराब के जरिए बन रहा होता है, ठीक है। तो वो हम समझ सके जो अरबिक लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये एराब का काम होता है, सबसे पहले क्या, ग्रामेटिकली किसी भी वर्ड की क्या पोजीशन है जुमले में, और इन्हीं एराब के जरिए से किसी भी वर्ड के इन डेप्थ मीनिंग जो होते हैं वो हमें मालूम होते हैं, ठीक हो गया। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कहती हूँ दरबा अहमदु अमरन, ठीक है, इसका मतलब है अहमद ने उमर को मारा। तो वो मुझे कैसे पता चला कि अहमद ने उमर को मारा, क्योंकि अहमद को मैंने मरफू रखा, मरफू कैसे, अहमदू मैंने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अहमदू है ये फाइल मरफू है और अमरन मफूल मंसूब है, ठीक है। तो ये सिर्फ एराब की वजह से मुझे पता चला कि अहमद ने उमर को मारा। अगर मैं कह दूं दरबा अहमदा अमरू, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा उमर ने अहमद को मारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अहमदा था वो मंसूब हो गया, और मंसूब सिर्फ मफूल की पोजीशन होती है, ठीक है, मंसूब। और जो अमरुन मैंने कहा, ठीक है, अमरुन अब जो है उस पे जम्मा आ गई, तो इसका मतलब है वो फाइल बन गया और वो मरफू है, ठीक है, यानी कि मारने वाला उमर हो गया यहाँ पे। तो ये सिर्फ जो है वो एराब की वजह से मीनिंग्स का जो है ना कितना बड़ा जो है वो डिजास्टर आ गया, समझ आ रही है। तो ये एराब की वजह से ही हमें मीनिंग्स का भी पता चलता है और ग्रामेटिकली वर्ड्स की जुमले में क्या पोजीशन है वो भी पता चलती है। इज इट क्लियर? नाम। नाम या अच्छा, तो उस्ताद। इसको मतलब बोलेंगे किस तरीके से, ये लिखा हुआ है ना अल कलमु, तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, अलामत जम्मा हालत मरफू। नहीं, इसको यूं करेंगे, अल कलमु मरफू बिज़म्मा, अल ठीक है। कलमु मरफू बिल जम्मा। अच्छा, हाँ, नाम। अल कलमा मंसूब बिल फतहा। देखे, अब मैं इसको नहीं कह रही पूरे वर्ड को, अल कलमा यहाँ पे रफा नफ रफा जम के साथ शो हो रही है, ठीक है, इस पूरे वर्ड को मैं कह रही हूँ ये मरफू है, ठीक है। जी।
اور القلمی یہ مجرور بالکسرہ ہے، ٹھیک ہے. اور نعم. نیچے جو آ رہا ہے اجلس، یہ اجلس نہیں ہوگا، یہ یجلس ہوگا، ٹھیک ہے. یجلس ہے یہ یجلس، کیونکہ پیچھے لکھا ہے فعل مضارع پہ آتی ہے نا یہ علامت صرف. یجلس جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مجزوم مجد. بالسکون، نعم. ٹھیک ہے. ایسے ہی ان کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ میم کیجیے گا. یہ اجلس بھی ہو جائے گا نا، مطلب امر بھی ہاں ہوا ہاں جائے اجلس وہ بھی اجلس ہوتا ہے، بیٹھو. اجلس فعل امر ہوتا ہے نا. فعل امر. اس جی. کو سمجھے، کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. یہ پیچھے والا کھولیے گا. یہ جو یہاں پہ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں نا، اس کے اعتبار سے میں کہہ رہی تھی کہ مضارع. مجزوم وہ فعل ہوتا ہے جو فعل مضارع ہوتا ہے جس میں علامت سکون پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فعل مضارع کی بات کر رہے تھے، اس وجہ سے میں نے کہا یہاں پہ اگزامپل یا جلیس کی آئے گی فعل مضارع والی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ اوپن کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ نکیرہ اور معرفہ کا، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہوگا نکیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو کہتے ہیں، معرفہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی ہم ڈیفینیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ نکیرہ عربک میں ہم کس کو کہیں گے؟ الاسم النکیرہ هو اسم يدل على شيء غير محدد او عام ويكون بدون الف لام، مثال على ذلك طفل تلميذ وردة. ٹھیک ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جو ہے نا جو نان اسپیسیفک کوئی بھی جو ورڈ ہوتا ہے نا، جائے کوئی عام جو کسی اسم پر، عام ناؤن پہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، عام ناؤن کا میننگ دیتا ہے. اور عموماً یہ کیا ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ جو اسم نکرہ ہوتا ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے، وہ الف لام کے بغیر آتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ورڈ ہے؟ طفلون، اس کو الف لام کے بغیر ہم نے لکھا، الف لام نہیں، الطفل نہیں لکھا، ٹھیک ہے. الطفل الطفل لکھیں گے تو یہ پراپر ہو جائے گا. تو طفلون جب ہم کسی بھی ورڈ کو الف لام کے بغیر لکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کامن ناؤن کہلائے گا، ٹھیک ہے. تلمیذن، طفل کہتے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے، بچہ. تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو، ٹھیک ہے. تلمیذن الف لام کے بغیر لکھا، ٹھیک ہے، تو یہ کامن ناؤن ہوگا، اسم نکیرہ ہو گیا. وردتن، وردتن کہتے ہیں پھول کو، گلاب کے پھول کو، گلاب کے پھول، ٹھیک ہے. تو اس کو الوردہ ہم نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ الف لام کے بغیر لکھا تو یہ اسم نکیرہ یعنی کامن ناؤن ہو گیا. كل هذه الأسماء السابقة تدل على غير معين، فكلمة طفل على سبيل المثال لا تدل على طفل معين نقصده. کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اسماء، یعنی یہ جو پیچھے ہم نے طفل، تلمیذ اور وردہ، یہ جو 3 ورڈز ہم نے پڑھے ہیں، یہ نان اسپیسیفک ہیں. یہ کوئی اسپیسیفک کسی بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسپیسیفک شاگرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسپیسیفک گلاب کے پھول کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی خاص نہیں ہے یہ تمام ورڈز، بس جو کلمہ جو یہ جو ورڈ طفل ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی اسپیسیفک بچے پہ، اسپیسیفک بچے کا میننگ نہیں دے رہا ہے. یعنی کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے، اگر میں اپنے بات کرتے ہوئے طفلون کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بچہ مراد ہو سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اب طفلو کہہ رہی ہوں تو اس کے مطلب ہے کسی ان تمام بچوں میں سے کسی اسپیسیفک بچے کی میں بات کر رہی ہوں، خاص بچے کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اسم نکرہ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے، اور عربک میں یہ وہ کامن ناؤن ہوگا جو الف لام کے بغیر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ سمری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں معرفہ کی طرف. معرفہ کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ معرفہ ہوتا ہے پراپر ناؤن، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ناؤن، اس کو ہم اسپیسیفک کر دیتے ہیں. الاسم المعرفہ هو اسم يدل على شيء معين او خاص، مثلا اسم علم، اسم المعرف بالالف واللام. اس معرفہ وہ اسم ہے جو کسی اسپیسیفک ناؤن یا جو خاص جو ناؤن ہے اس کو جو ہے نا وہ خاص ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس اسم علم ہو، اسم علم کہتے ہیں وہ ناؤنز جو الف لام کے بغیر لکھے جاتے ہیں. کسی بھی جو ہے نا انسان کا نیم ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی بھی جو ہے نا وہ کنٹری کا نیم ہو گیا، سٹی کا نیم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اسم علم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اسم علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں کہتی ہوں احمد، فاطمہ، محمد، ٹھیک ہے، یہ اسم علم آگے. اسی طرح سے دوسرا کیا ہو گیا؟ اسم معرفہ کی دوسری کائنڈ کون سی ہے؟ الاسم معرف بالالف، وہ اسم جن کے ساتھ ہم الف لام کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے
तिफलुन हमारे पास वर्ड है, इसके साथ अलिफ लाम लगा देती हूँ तो अब तिफल बन जाता है। ठीक है, तो इसम मारफा बनाने के हमारे पास इसम मारफा की हमारे पास दो काइंड्स हैं। एक इसम अलम यानी जो प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे पास बहुत से लोग हैं, उनमें से मैं किसी को पुकारती हूँ अहमद, तो वो उस जो मेरे पास सामने जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें से किसी एक का नाम अहमद होगा ना, तो वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, इसके साथ अहमद के साथ मुझे अलिफ लाम लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अल अहमद में कभी भी नहीं कहूंगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अहमद में कहती हूँ तो वो स्पेसिफिक हो गया, वो खास हो गया, वो इसम मारफा हो गया। और किस काइंड में, इसम मारफा की कौन सी काइंड में आएगा? इसम अलम। ठीक है, तो इसी तरह से मैं फातिमा कहती हूँ तो इट मीन्स वहां पे फातिमा कोई एक होगी। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी। इस अलम के साथ हम कभी भी अलिफ लाम नहीं लगाते। ठीक, अब दूसरे हमारे पास इसकी कौन सी किस्म आ गई है कि वो किस्म जिनके साथ हम अलिफ लाम लगाते हैं, तो ये कौन से नाउन हो जाएंगे? वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे तिफल, तिलमीज, वर्दा, ये हमारे पास वर्ड थे ना जो हमने पीछे पढ़े इसम नकरा में। तो इनके साथ जब भी हम अलिफ लाम लगाएंगे तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाएंगे। अलिफ लाम लगाने के साथ फिर वो स्पेशल हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे, वो हमें पता चल जाएगा कि किसी खास बच्चे की बात हो रही है। अतिफल जब मैं कहूंगी, ठीक है, अतिलमीज जब मैं कहूंगी किसी खास शागिर्द की बात हो रही है। अल वर्दा जब मैं कहूंगी किसी खास फूल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसम मुअर्रफ बिल अलिफ वल लामी, वो इसम जो मार्फा होते हैं, प्रॉपर होते हैं अलिफ लाम लगाने के साथ। ठीक है, ठीक हो गया, ये सबको समझ आ गई है इसम नकरा और मारिफा? नाम या हाँ। उस्ताद? मैम है। इसके अगर बाद ये मतलब अस्माए इशारा और अस्माए ज़मीर ये भी मार्फा है। जी हाँ, ये भी मार्फा होते हैं, लेकिन ये अभी हम नहीं ना पढ़ रहे, हम बिल्कुल शुरू में। ठीक है, तो हम इनको अभी पढ़े, जब हम जुमले में पढ़ेंगे ना, जुमला स्टार्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज मार्फा आ रही है। ठीक हो गया, अब एराब नकरा वल मारिफा। एराब, अब हम नकरा और मारिफा के एराब पढ़ेंगे। कलिमतु नकरा ताती बि तनवीनिन, ठीक है, मसलन कुर्सियुन, किताबन, शम्सिन। ठीक है, किताब बता रहे हैं कि जो नकीरा होता है ना वो हमेशा तनवीन के साथ आता है। ठीक है, नकीरा जो होता है, वह जो वर्ड नकीरा होता है वो तनवीन के साथ आता है। जैसे कुर्सियुन, ये तनवीन बिजम्मा के साथ आ रहा है। किताबन, ये मंसूब बिल फतहा के साथ आ रहा है। शमसिन, ये मजरूर बिल कसरा के साथ है। ठीक है, सॉरी, ये तनवीन बिल कसरा के साथ है। ठीक है, इसी तरह से मारिफा के क्या इराब होते हैं? कलिमतु मारिफा ताती बिदूनी तनवीन, जो मारिफा वर्ड होता है वो तनवीन के बगैर होता है। कभी भी जो मारिफा वर्ड होता है उस पे तनवीन नहीं आती है। ठीक है, जैसे मैं कहूंगी अल कुर्सियु, अलिफ लाम के बगैर पढ़ूंगी नकिरा तो कुर्सी युन पढ़ूंगी, लेकिन अलिफ लाम लगा दिया तो कभी भी अल कुर्सी युन नहीं पढ़ूंगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रामेटिकली गलत है। अल कुर्सी यू, ठीक है, अल किताबु या अल किताबा, अशमसी। ठीक है, कभी भी जब हम किसी वर्ड को मारिफा बनाएंगे अलिफ लाम उसके साथ लगा देंगे, उस पर तनवीन नहीं आएगी, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ आ गई है? मैम, और जब भी हम नकरा बनाएंगे तो उसके अंदर तनवीन आएगी? हम्म, यानी नकीरा को अभी हम जुमला नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, यानी आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, इंडिविजुअली लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको नकीरा रखना चाहते हैं तो वो तनवीन के साथ आएगी, और अगर आप उसको मारिफा रखना चाह रही हैं तो वो तो उस पर तनवीन कभी भी नहीं आएगी। ठीक हो गया, आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो म्यूट करें। ठीक हो गया, समझ आ गई है आपको आमिना? नाम या उस्ताद? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कीजिएगा। हाँ, अब मुझे बताएं कि मेरे साथ इन आयात में आपने जो है इसम मारिफा और इसम नकीरा का तायुन करना है। ठीक है, अब कौन करना चाहेगा? ये हैंड रेज करें। मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक आमिना हो गई, आयत और वजीहा, साजिद, रिजवाना, माहम, हुमैरा। आप लोग नहीं करेंगे? नाम? मैम मैंने पहले कहा है।
आप कौन सी आइडिया, हाँ तो आप हैंड रेज करें ना ताकि मुझे मालूम हो, ठीक है, ताकि 1 by 1 में सबसे करवाऊं। मैम आप अच्छा नाम ले लें, रिजवाना, सब कर लेंगे। नहीं करेंगे ना ऐसे, मैं देखना चाह रही हूँ भाई आपको खुद भी शौक है या मेरे मेरे कहने पे ही जो है ना धक्के से आ रही हो आप, हाँ? ठीक है, ये वजह इश्फाक नहीं करना चाह रही है, ठीक है ओके। ठीक है आमीना, और ठीक है पहले साजिद आप आ जाएं, आप मुझे बताएंगे इस आयत में आपने अस्माए मारिफा और नकीरा का तयन करना है, ठीक है। आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फत्तकुन नारुल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन। ये अन्नार मार्फ है। हाँ अन्नार मारिफा है, और उसके बाद अन्नास भी मार्फा है, अल हिजारा मारिफा है, हम्म, लिल काफिरीना भी मार्फा है। असल में ये अल काफिरीना है, तो पीछे लाम लगा है तो इसकी वजह से अलिफ गिर गया। अहसनता, अहसनता बारकल्लाहु फीका, नाम बहुत अच्छा आपने बताया, बारकल्लाहु फीका। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 जो वर्ड्स हैं और वो मार्फा है, और ये मार्फा की कौन सी कैटेगरी से आ रहे हैं, मुर्रफ कौन सी बिल्लाम। काइंड है ये? हाँ मुअर्रफ बिल अलिफी और वल्लाम से। बिल्लाम। मुअर्रफ बिल अलिफी वल्लाम या मुअर्रफ बिल अल, ठीक है, यूं कह सकते हैं, दोनों तरीके से कर। अहसन तसाजुद। नेक्स्ट है हमारे पास आया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाअun लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जी आमीना आप बताएंगे। मैम इसके अंदर सबसे पहले अन्नास जो है वो मार्फा है, इसमें मार्फा। हम्म फिर हम्म, मौइज़ा जो है वो इसमें नकरा है। अहसनती। हम्म, इसमें शिफाउन जो है वो भी इसमें नकरा है। और अहसन। असुदूर जो है वो मार्फा है। और हम्म हुदन जो है वो नकरा है। और हम्म मोमिनीन जो है वो मार्फा है, लेकिन उसके अंदर जो अलिफ है वो हज़फ हो गया और लाम आ गया। और रहमा जो हम्म, है वो अ, इसमें नकरा है। इसम नकरा है, अहसनती बारकल्लाह फीकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आयत, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। जी आयत। मैम इसमें अशैतान जो है वो मारिफा है। और अहसन जी, मार्फा की कौन सी काइंड है ये? मुअर्रफ बिल्लाम। और मुअर्रफ बिल अलिफी वल्लामी, ठीक है। जी या मैम। उर्दू में अगर आपने बोलना है तो आप कहेंगे अलिफ लाम, मार्फा अलिफ लाम ओके। वाला, या इस तरह से कहते हैं। जी मैम ठीक है। उसके बाद है बिन, हम्म ये है नकरा। हम्म, राबिन, ये भी नकरा है। अकीरा है, अहसन। और इसके अलावा कोई और वर्ड जो आ रहा हो आपके जहन में यहाँ पे मारिफा या नकरा की काइंड कैटेगरी में से? नहीं मैम इसमें तो नहीं है पूरी आयत में। ठीक हो गया, अहसन थी, आप जितने बताएं सही बताएं। ठीक है, इसी आयत में रिजवाना आप मुझे बताएंगी इस आयत में कोई और इसम मारिफा अयूब, या नकीरा? नक अयूब, हम्म, इसम मारिफा या नकीरा है? ये मार्फा है। इसमें अलम। अहसन थे बारकल्लाहु फीकी, नाम। ओह। ठीक है, नाम। सॉरी। नाम बस यही है ना? और हाँ हाँ ठीक है, मैंने सोचा आप क्वेश्चन करेंगे। अहसन थे। जी मैम आमीना नेक्स्ट। इसके अलावा ये नादा रब, ये भी तो नहीं, नादा फेल है। फेल है। रब्बा। हाँ रब्बा जो है ना नकीरा है, मैम इसमें ठीक है। मार्फा नहीं होगा रब हो, जबकि इसके ऊपर रब्बा, ऐसा नहीं आ रहा। रब्बा लेकिन नकरा क्यों है? अल्लाह ताला है तो यहाँ पर वो हज़फ है ना, अल्लाह ताला का होना। नहीं, इसमें जलाला। ये फिर ये ये आप मानवी तौर पे देखेंगी ना तो ये हो सकता है कि ये मारिफा हो, ठीक है।
बलागत इसमें, जब इसमें जो है ना, इनमें बलागत की रूह से देखेंगी, लेकिन एज अ वर्ड देखेंगी तो एज अ वर्ड आर रब होता है word, ठीक है, अलिफ लाम के साथ आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कुरान पाक में सिर्फ ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं होते, उसके दलाला भी अप्लाई होती है, बलागत के उसूल भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो उन जी तमाम चीजों को देखते हुए हम कुरान पाक को लेके चलते हैं। ये जो आपको ग्रामर बता रहे हैं, ये सिर्फ बेसिक्स हैं कुरान पाक, ये बेसिक होती है, फर्स्ट स्टेप है आपके लिए। फर्स्ट स्टेप लिए बगैर आप बाकी कुरान पाक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब आप पहला ही सीढ़ी छोड़ देंगे तो आप पांचवी सीढ़ी पे पाँव नहीं रख सकेंगे। ठीक है, आपकी ना। टांग उतनी लंबी हो ही नहीं सकेगी। समझ रहे हैं आप? इसीलिए आपको सबसे पहले ग्रामर पढ़ाई जाती है। ठीक है, लैंग्वेज का वो स्टार्ट करवाया जाता है ताकि आपको जुमलों की समझ जाए, बोले कैसे जाते हैं, आपके जुबान पे वो आदि हो जाए आप उनकी। ठीक है, ताकि जब आप कुरान पढ़ भी रहे हों तो आपको पता चले ये तो फलां रूल के खिलाफ आ रहा है, ऐसे तो मेरी जुबान पे तो ये कलीमा इस तरह से आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो आपकी एक ट्रेनिंग हो जाती है, आप उस चीज को, गलत चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रहे होते। उसके बाद फिर आपका लेवल आता है, हाँ अब आप इसकी जो है ना वो दिलालत को समझे। ठीक है, इनके साथ और कौन से ऐसे रूल्स अप्लाई हो यहाँ पे, ये ग्रामर के रूल के खिलाफ क्यों आ गई है यहाँ पे बात कुरान पाक में। ठीक है, तो वो उसकी एक पूरी एक जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग बन रहा होता है। ठीक है, सियाक दाखिली सियाक खारिजी होता है, यानी विद इन आया एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा होता है, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बात बन रही होती है। ये तमाम चीजें बाद में पढ़ी जाती है, उनको समझने से पहले आपको ये समझना, ग्रामर के बेसिक रूल समझना जरूरी है। ठीक है, ना। इसीलिए जो वर्ड रब है वो नकीरा है, यहाँ आयत में मारिफा है अभी। ठीक है, लेकिन रब, सॉरी, जो रब वर्ड है ये नकीरा है, क्योंकि जो रब है वो जो माँ होती है ना उसको रब्बतुल बैत भी कहते हैं। ठीक है, रब्बतुल बैत, हम्म रब का मतलब होता है पालने वाला। ठीक है, सिर्फ पालने वाला नहीं, जो आपका हर तरीके से ख्याल रखता है। ठीक है, तो ये मीनिंग अरबिक लैंग्वेज में माँ के लिए भी आती है, रब्बतुल बैत, घर का रब। ठीक है, घर की रब, घर को तरतीब देने वाली, ख्याल रखने वाली, ठीक है, रखने वाली। मुनज्जम ना। करने वाली। ठीक है, उसको रब्बतुल बैत कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ये अर रब मार्फा भी आता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे ये वर्ड तो यहाँ पे ये मारिफा नहीं है, ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे। ठीक हो गया आमिना? मैम ये आई थिंक, हाँ वैसे तो इस पे मैंने बहस भी पढ़ी थी एक काफी लंबी, लेकिन मेरे ख्याल में ये ना डिपेंड करता है, मतलब कलाम कौन कर रहा है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि एक काफिर कलाम कर रहा हो तो बहुत सारे अपने मतलब रब्बों रब को को कॉल पुकारो। कर रहा हो। हम्म। हाँ, और एक मुसलमान कलाम कर रहा हो तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल खास रब को पुकार रहा हो, तो वो असल में मुसलमान हम्म। मारफा उसको समझ रहा हो, कह रहा हो, बात करते हुए, हम्म। पुकारते हुए, और काफर मतलब नकरा की सूरत में कि बहुत सारे रब तो हैं। एग्जैक्टली। यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मार्फा की सूरत में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे तो मार्फा है ना, यहाँ से मार्फा कौन है। है, जी जी अय्यूब है ना। हाँ, हजरत अय्यूब जी। अलैहिस्सलाम में तो उनका रब एक ही था। ठीक है, एक ही था तो ये तो मार्फा बन जाएगा। हाँ, ये स्पेसिफिक मीनिंग अंदर स्पेसिफिक दे रहा है, ग्रामेटिकली इसको देखे तो ये भी नकरा है। ठीक है, नक सिर्फ रही जी। ग्रामर के रूप से। अभी जब मैं आपके सामने बात करती हूँ तो मैं अकायद को सामने रखे और बाकी जो दीनी उसूल और अकायद उनको सामने रखे नहीं बात कर रही होती। हम यहाँ पे अभी जो है ना बेसिक अरबिक पढ़ रहे हैं लैंग्वेज जी। के, हाँ अरबिक लैंग्वेज को जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं, और उसमें भी हम ग्रामर को स्पेसिफिक एक मार्फा और नकिरा को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसमें जो जी हमने रूल्स पढ़े होते हैं हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए तमाम स्टूडेंट्स को लेके चल रहे होते हैं ना, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हाँ। आपको वो चीज करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये जो बहसें हैं, ये जो तमाम चीजें हैं, ये बाद में जाके आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब आप इन रूल्स को अगर आप समझ लेंगे। बाकी साजिद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक हो गया, नेक्स्ट मैम स्लाइड कीजिएगा। सवाल था। जी मैम जी। स्लाइड्स खत्म हो गई। जी ठीक है, जी आयत आप सवाल कीजिए। मैम ये जो हमने पिछले दिन कंट्रोवर्सी सुनी थी उनके बारे में, तारिक मसूद के बारे में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। तो उन्होंने भी ऐसी बातें कुछ की थी ग्रामर के हवाले से ना, तो उसके बारे में आप हम्म। कुछ समझाना चाहूंगे? अच्छा, वो जो उन्होंने क्या बोला था, मुझे सारा अल्फाज थोड़े ग्रामर भूल की। गए हैं। मैम उन्होंने ये बोला था कि वो हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मुझे याद आ गई है। उन्होंने बोला था कि ये जो है ग्रामर की गलती है, कुरान पाक में ग्रामेटिकली गलतियां हुई हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, अनपढ़ थे, उनको तो नहीं पता था, तो वो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं कुरान पाक में। ये उन्होंने बोला था, ये स्टेटमेंट थी ना उनकी। जी मैं हाँ,
इतनी मतलब मुझे जो समझ आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आप उनकी बता दूं स्टेटमेंट मैम ये वाली थी, लेकिन उनके अंदर उनका एक तो। और भी पॉइंट ऑफ व्यू था। वो असल में एक चीज को डिफेंड करना चाह रहे थे, और वो ये थी कि कुरान कब से लेकर अब तक जो है ना महफूज है, तो पहले जो इसमें गलतियां हुई थी वो अभी भी वैसी की वैसी। नहीं नहीं, गलत नहीं उन्होंने कहा था मैम, उन्होंने हम्म कहा था कि एक वर्ड है, ठीक है, वहां पे वो ग्रामर का जो रूल है ना, वो वो उसको नहीं सपोर्ट हम्म कर रहा, ठीक है, तो हम हम्म मतलब नहीं वो किया गया ना। वो आपकी वाली भी बात है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो जैसे जिसने लिख दिया था तो वो वैसे ही चल रहा है आज तक। ये उन्होंने गलत कहा है टोटली। वो पब्लिक सेशन कर रहे हैं। और देखिए, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैंने आपको तमाम चीजें वाजे की हैं कि मैं अभी आपको यहाँ पे किस एंगल से बता रही हूँ कि यहाँ पे रब नकीरा है। ठीक है, मैंने तमाम चीजें आपके सामने वाजे की। ठीक है, अब मेरी ये रिकॉर्डिंग शेयर भी करते हैं आप लोग। अब ये जिस जिस तक जाएंगे तो उसके पीछे आगे पीछे पूरी बात वाजे होगी। अब अगर आप हम्म। पब्लिक सेशन कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि कुरान पाक में मिस्टेक्स हैं, नाउजुबिल्ला, कलामुल्लाह में मिस्टेक्स हो सकती हैं। नो, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें अगर ग्रामेटिकली अगेंस्ट ग्रामर आ रही है तो उसकी एक पूरी दिलाला बन रही होती है। ठीक है, उसके अंदर बलागत अप्लाई हो रही होती है। अगर आप मेरे साथ रहें, ये आपकी जो जर्नी है अरेबिक लैंग्वेज की मेरे साथ रहे, तो मैं आपको आगे ये चीजें पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। इल्मुल बलागा, इल्मुल दिलाला, ये मैं आपको चीजें बताऊंगी। इसकी जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप सोचेंगे कि आपकी दुनिया ही चेंज हो गई है। आप अपने आप को अलग मुसलमान फील करेंगे। आपको खुशी होगी कोई भी अमल करते हुए, जब आप कुरान पाक को इल्मुल दिलाला और इल्मुल बलागा की रोशनी में देखेंगे तो। ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन अब अभी अगर मैं जी आपको चीजें बताऊं ना, तो आपकी माइंड में खिचड़ी सी बन जाएगी। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगी प्याज भी पड़ा है इसमें, लहसुन भी है, ये टमाटर भी है या नहीं है, वो सब मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो एक सही। उस्ताद का काम ये होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप लेके चले स्टूडेंट को। ठीक है, ताकि उसको तमाम चीजें पता चले कि अभी पहले प्याज को ब्राउन करना है, इतना टाइम लगना है उसमें, फिर लहसुन भी डालना है, ठीक है, उसका इतना टाइम लगेगा, फिर टमाटर को मैश करना है, ठीक है, ऐसे अच्छे से बनेगा। फिर जब वो पक के एक चीज सामने आएगी ना, हाँ अब हमने चावल डालने, फिर वो उसका जायका अच्छा आएगा। समझ रहे हैं? तो ये उस्ताद का काम होता है कि स्टूडेंट्स को अपने साथ इस तरह से लेके चले। तो समटाइम्स आपके कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा, समटाइम्स नहीं किया जाएगा। अब वापस आते हैं बैक टू द कन्वर्सेशन के जो तारिक मसूद साहब ने कहा है, तो वो गलत बात है। कुरान पाक में जो अगेंस्ट द रूल होती है चीजें, वो बलागत में आती हैं। समटाइम्स जो अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, कुरान पाक में आप देखेंगे अदवात इस्तफहाम आते हैं, यानी इंटरोगेटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है कुरान पाक में। तो जब हम अदवात इस्तफहाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ आपका क्या नाम है, इट मीन्स कि मैं आपका नाम नहीं जानती तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसी बात है ना। लेकिन जब मैम। आप इसको इल्म बलागत में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला जब किसी चीज का जो है ना वो सवाल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है वो उस अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे होते कि मेरे इल्म में नहीं है तुम बताओ। ठीक है, उसके अलग मीनिंग्स बन रहे होते हैं, या अल्लाह ताला उन पे जो है ना तनकीद कर रहे होते हैं, या कुछ इस तरह के कुछ मीनिंग्स आते हैं। अब मैं स्पेसिफिक किसी आयत को नहीं आ रही, तो मैं कह भी नहीं सकती इस तरह से। तो वो ये होता है कि या अल्लाह ताला तनकीद कर रहे होंगे, ठीक है, या उन पे तंज होगा, ठीक है, या इस तरह के कुछ मीनिंग्स आ रहे जी। होते हैं वहां पे अदाते इस्तफहाम के। तो ये कुछ उसूल होते हैं, ये उसके तहत आ रहे होते हैं। अब ग्रामर का कोई रूल है वो अगेंस्ट द रूल है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आयत है, इसको अगर ये आप समझ लें तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास जो होता है ना, हमने आग वगैरह की चीज पढ़ी है, ये वाली, ये मैंने टर्म्स आपके सामने बोली है। नाम या उस्ताद। हम्म, अब मैं आपको बताती हूँ जो जमायर होती है ना, उनमें से जो मुअन्नस की जो जमीर होती है ना, हा, ठीक है, जमायर तसीला में जो हा जमीर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, वो जब जो है ना, जैसे हमारे पास जो जमा जमा भी हमने पढ़े ना, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुजक्कर सालिम, ऐसे पढ़े हमने, पढ़ा चुकी हूँ आपको। नहीं मैम, अभी नहीं पढ़ाया। नहीं अब। मुझे मैम लगता है मैंने आपको कुछ नहीं। पढ़ाया है। कुछ पढ़े थे मैम, ये बल्कि पूरा डिटेल लेक्चर एक हुआ था। मैम, जो इसकी एग्जाम्पल आपने दी थी, इन डेप्थ नहीं पढ़ाया था आपने, बस ये कहा था कि इसके अलावा भी होती है एक कैटेगरी ना। अच्छा, तो जो एक होती है ना हमारे पास जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है, एक होती है जमा मुअन्नस सालिम, एक हमारे पास आती है जमा तकसीर, ब्रोकन प्लूरल प्लूरल जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
जो हमारे पास ब्रोकन प्लूरल होता है ना, उसके साथ जो जमायर आती है ना, जो जिन जमीर का हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या आती है? हाँ आती है, ठीक है, क्योंकि वो गैर अकील की जमा मोहन्नस। हो जाती है। ठीक है। अब जो गैर अकील की जो जमा होगी ना, यानी ऐसा वर्ड जो गैर अकील होगा, यानी इंसान के अलावा कोई है या हैवान में से है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, उसकी जो प्लूरल आएगी ना, ठीक है, तो उसके साथ उसकी कोई भी सिफ्त है, ठीक है, या उसके साथ जो हम जमीर इस्तेमाल करेंगे ना, वो हाँ मुअन्नस वाली इस्तेमाल होती है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको हाँ। आयत बताती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। ठीक है। यहाँ पे ये जो है अल्लाह ताला कहते हैं वअल्लम आदम अल अस्माअ, अस्मा जो वर्ड है ये ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। अब कुल्लहा, इसके साथ जो कुल्लहा जो है ना, वो कहते हैं कि सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या है? नाम है। अब इसके साथ जो जमीर इस्तेमाल हुई है वो क्या है? मुअन्नस की इस्तेमाल हुई है, हा कुल्ला हा। ठीक है। सुम्मा अरज़हुम, फिर पेश किया उनको। यहाँ पे जो हम जो जमीर होती है ना, वो सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम जो जमीर है, जो मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये सिर्फ आकिल, ये सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल होती है हम। अब पीछे बात चलती आ रही है मुअन्नस की, सॉरी, पीछे जो बात चलती आ रही है वो अस्मा की बात है। अस्मा इटसेल्फ जो है वो गैर आकिल की जमा है, ठीक है। एक अस्मा जो है, ये वर्ड जो है, ये नॉन लिविंग है ना, ऐसे ही है। जी जी। लेकिन जब आरादहुम अल्लाह ताला ने कहा पेश करो उनको, ठीक है, तो जी वो जो मैम। पेश करना था वो तो नाम ही पेश करने थे ना। अब यहाँ पे आरादू हा क्यों निकाला अल्लाह ताला ने? कहा हम जमीर क्यों लगाई है? ठीक है, तो इसकी पूरी दिलाला है यहाँ पे। इससे इसके जो है ना मुफस्सिरीन इसकी दिलालत लिखते हैं, उनमें से जिनकी मुझे पसंद आई है एक दिलाला, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बाकी सबका नहीं पता उन्होंने क्या लिखा, लेकिन कुछ उस मुफस्सिर की मैंने राय पढ़ी है, तो उनमें से एक मुफस्सिर की राय मुझे बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने बताया यहाँ पे ये जो नाम थे ना, ठीक है, अब देखिए ये दिलाला होती है। यहाँ पे ये जो नाम थे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद तमाम कायनात की तमाम चीजों के नाम थे, ठीक है। लेकिन फिर उससे रिलेटेड फिर उसमें जो है ना वो अकील और गैर अकील दोनों आ जाते हैं, फिर कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए था? तो एक मुफस्सिर की ये राय थी कि यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो नाम सिखाए थे ना, वो लोगों के नाम थे, ठीक है, अंबिया के नाम थे। तो इस वजह से उन नामों के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे जो जमीर आई है वो हम आई है, जो अकिल के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब ये क्यों यहाँ पे ये वाली जमीर इस्तेमाल हुई है? क्यों? क्योंकि जो फरिश्तों का जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो ये था कि ए अल्लाह, तू वैसी ही मखलूक बनाने वाला है जो खून रेजी करेगी, फसाद करेगी जमीन में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनके सामने एक ऐसा डेमो पेश किया, सॉरी, अल्लाह ताला ने उनके सामने जो है उनका ऐसा जवाब पेश किया कि ये वो ये जो है ना, ये अब अल्लाह ताला की वहां क्या स्कीम हुई होगी, उन्होंने पूरी जो सॉरी जो अब दिया होगा, ठीक है, वो हमारे हमें मालूम नहीं है वो किस तरह से अल्लाह ताला ने पिक्चर दिखाई होगी या इस तरह से। और आदम को बताया होगा कि बताओ उन लोगों के नाम जो इस जमीन में फसाद करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, वो इस्लाह करने वाले भी होंगे, ठीक है। तो उन इस्लाह करने वाले लोगों के, अंबिया के, सिद्दीकीन, शुहदा के नाम बताओ, ठीक है। तो अब ये दिलालत कर रही है कि ये असल में अस्मा जो थे ये आकिल के नाम थे, ठीक है, यानी आकिल यानी इंसानों के नाम थे। इस वजह से यहाँ पे जो जमीर इस्तेमाल हुई है वो हम की इस्तेमाल हुई है, यानी जो अस्मा जो है ना, उन्होंने जो अंबिया के, सॉरी, फरिश्तों के सामने पेश किए वो इंसानों के नाम थे, ठीक है, और इंसानों में से भी उनके नाम जो इस्लाह करने वाले होंगे, ठीक है। ये एक राय है मुफस्सर की, और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस रूल बैठती है। मैम ये समझ आ? मुझे थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू रूल नहीं बैठ रही। क्यों? जैसे मतलब उनको अगर आकल के नाम बताए गए थे, तो इसके लिए हम यूज हुआ। तो अस्मा अकुल्लाहा पहले भी तो मतलब वही अस्मा थे ना, बाद में चेंज तो नहीं बना, वहां पे फिर गैर अकल का रूल क्यों? गुड, ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया। अच्छा, अल्लाह ताला ने तो उनको सारे नाम बताए ना। अब आदम ने जमीन सरवाइव तो करना था ना, लेकिन जो नाम उन्होंने पेश किए उनके सामने, फरिश्तों के सामने, तो वो आकिल के नाम थे। समझ आ रही है आपको? क्योंकि उनके उनका जो था ना क्लेम था फरिश्तों का, वो ये था कि ये फसाद करने वाली जो है ना वो कौम होगी, खून ओके, बहाएगी। मतलब समझ वो आ रही ये है? कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने
मतलब कुल्लाहा, हर चीज के उसमें गैर अकल भी आ गई, अकल भी आ गई, उसके नाम बताए। और फिर आदम ने मतलब आगे से अपनी सफाई में उन लोगों का नाम पेश किया। देखो तुम कह रहे थे फसादी हैं, इसमें सिद्दीक भी तो हैं, शुहदा भी हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, जो उनके सामने जो पेश किए ना वो आकी के नाम थे। ठीक है, ये अब जो है ना मुफस्सिर, उन मुफस्सिर की ये राय जो है ये बिल्कुल टू द रूल जो है ना वो बैठती है, मतलब फिट इन होती है। तो ये वाली जो है ना वो राय इस तरह से आती है। अब ये दिलालत है इस पूरी उसके पीछे। ठीक है, तो ये चीज होती है इल्म दिलाला। अब कभी कोई उसूल अप्लाई हो रहा हो यहाँ पे, ठीक है, वो फिर हम बाद में देखते हैं कि इल्म बलागत का ये कौन सा उसूल अप्लाई हो रहा है। तो इस एतबार से कहना कि कुरान पे में गलती है और कुरान को ऐसे लिखा गया है, ये इंतहाई गलत बात है, इंतहाई गुमराही वाली बात है जो तारिक मसूद साहब ने की है। कुरान जो है वो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, उसमें किसी तरह की भी एक नुक्ते, एक जो है ना फासिले, किसी की भी गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये हमारा अकीदा है, ईमान का हिस्सा है हमारा। बेशक। ठीक है, अगर हम कहें कि कुरान पाक में गलती है तो इसका मतलब है हमें अल्लाह ताला के कलाम पे शक है। तो इट मीन्स के हमें फिर अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं है, तवक्कुल नहीं है तो मुसलमान काहे के हम। ठीक हो गया। ओके, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। वैसे तो और मैंने इस मैम, पे एक अलग से वीडियो बनाई थी, आप लोग देख लीजिएगा अगर चाहें तो। बहरहाल मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि मतलब एक मुसलमान जो होता है ना, वो कुरान के ताबे होता है। तो उसका ये काम होता है कि चाहे साइंस हो कोई चीज़, मतलब साइंस का कोई रूल है जो इस वक्त स्टैब्लिश है और वो कुरान के किसी रूल से टकरा रहा है, तो हम उसको ये कहेंगे कि इस वक्त साइंस का ये रूल, इसमें कहीं ना कहीं गलती है, सही स्टैब्लिश नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन कुरान का जो अल्लाह ताला ने बताया वो गलत नहीं हो सकता। इस तरह जुबान में अगर कोई मतलब हमें ऐसी लग रही है, पहले तो वैसे बात यह है कि मतलब पहले जुबान आती है, रूल बाद में आते हैं। हाँ, तो लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसी कोई बात लग रही है तो हम ये कहेंगे कि कुरान की जुबान जो है वो सही है, जो हम बोल रहे हैं या हम सीख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी है, और वो कमी हम खुद ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगी। जैसे इस एक जुमले में आपको समझ आ रही है, तो आप गौर करेंगे, आप उसको गलती नहीं समझेंगे, आप उसको समझेंगे मैं कहीं मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप गौर करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप ढूंढ लेंगे, तो आपको एंड पे कुरान को मतलब ऑफकोर्स 100% ही पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब यहाँ पे वो बात होती है ना कि आप उनके जब कोई हम पे एतराज करता है, कोई भी मुस्तशरिकीन में से हो या मुसलमानों में से ही कोई इस तरह का एतराज करने वाला हो, अब हमारा काम है, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने हम उन लोगों को जवाब देना है। अब हम कैसे उनको जवाब देंगे जब हमें खुद लैंग्वेज आती होगी, हमने खुद ये चीजें पढ़ी होंगी, तो हम उनके क्वेश्चंस को, जब किसी एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे ना, तो आगे आने वाले इस तरह के गुमराह कुन 100, 200, 1000 क्वेश्चन जो है ना वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगे। ठीक है, कोई इस तरह का क्वेश्चन उठा ही नहीं पाएगा। तो ये काम हम मुसलमानों का है कि हमने समझना है, हमने उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें फिर आपकी लाइफ टाइम जर्नी चाहिए होती है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान से सिर्फ उसकी कोशिश का सवाल किया है, आपने कोशिश कितनी की है, तो अपनी कोशिशों को देखें कि वो कहाँ असर हो रही है। और सूरह कहफ की आखिरी आयत है, आखिरी रूह की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें उनका नाम बताऊं कि अमाल में सबसे घाट, अमाल में जो है सबसे ज्यादा घाटे में कौन है। यानी जिसकी तमाम तर, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे ज्यादा घाटे में वो इंसान है जिसकी तमाम तर कोशिशें दुनिया की जिंदगी के लिए सर्फ हो गई। ठीक है, अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो ये गुमान कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये अपने ऊपर ये सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत रोज सुबह शाम जरूर रिसाइट किया करें विद मीनिंग, ताकि आपको पता चले हमारा करने का काम क्या है। तो अपनी कोशिशें देखिएगा कि आपकी कोशिश दिन भर में, आपकी कोशिश किस काम पे सर्फ हो रही है, कितना टाइम आपने किस चीज के लिए क्यों लगाया है। ठीक है, कोई भी आपने घर में भी अच्छा काम किया है, किसी से अच्छा बिहेव किया है, उसके पीछे क्या आपकी पीछे पूरा जो है ना वो बैकग्राउंड, किस किस पे आपने अपना बैकग्राउंड खड़ा किया हुआ था। आपने किसी के साथ अच्छाई की है तो वो क्या वाकई अल्लाह की रजा के लिए थी, क्या आपके माइंड में कोई हदीस थी उसके तहत आपने किसी से अच्छा सलूक किया, या आपने अच्छा सलूक इसलिए किया कि मुझे कल जो है ना इससे जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे इससे जो है ना वो वापस अच्छा ही मिलेगी, या किसी और जो है ना वो लालच के थ्रू आपने उससे अच्छा सलूक किया। तो ये हर एक चीज में, यानी हर एक अमल में आपने अपने आप को जो है ना वो चेक करना होता है। आपकी कोशिश, हर कोशिश, ये अच्छा बिहेव करना ये कोशिश होती है। ठीक है,
مسکرانا کوشش ہے آپ کی. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی کوشش ہے. ٹھیک ہے، آپ کو عبادت کر رہے ہیں، کوشش ہے. تو اس کوشش کے پیچھے آپ دیکھ لیا کریں کہ یہ صرف آپ کا روزمرہ کی جو ہے نا روٹین بن گئی ہے، یا واقعی اس کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے، اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے جو واقعی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھاٹ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر جو ہے نا وہ آ رہی ہے. ٹھیک، تو یہ اس چیز میں اپنا چیک اینڈ بیلنس مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کلاس کو ون لاسٹ. میم بس ایک بات کہنی تھی ساجد بھائی، 1 منٹ پلیز. ہاں جی جی. میم سب سے پہلے تو معذرت، آپ نے بالکل وہ پڑھائے تھے جمع سالم، بس وہ مجھے یاد نہیں رہا، اس کے لیے آئی اپولوجائز. مجھے لگا کوئی جمع بات مقصد کی نہیں، بات ہو رہی مجھے ہے یاد آ رہی تو تھی میں پڑھائیں گے، پھر آپ لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں. اسٹوڈینٹس کو ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس زیادہ چیز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. جی اور میم میں نے بس یہ پوچھنا تھا، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا، لیکن بس ایک سوال یہ والا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلطی نہیں ہے، جو مصحف لکھا ہوا ہے اس میں بس جس نے لکھا تھا وہ تھوڑا بہت ہو گیا، تو یہ بھی تو اسی کی آئے گا نا گستاخی میں. میری بات نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں غلطی آ گئی ہے، مصحف کو لکھنے میں کسی نے مسٹیک کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کتاب کی اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور جو بائبل ہے، آپ ان کو، آپ ان کتابوں میں اور اس القرآن میں کوئی فرق نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اللہ یہ بھی اکبر. انہی ہاں کتابوں کی مانیے تو بس. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں کہ بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کوئی چیز ہے تو کسی کی مجال ہے کہ وہ اس میں پر بھی مار سکے، ورنہ ابھی تک اس میں ترمیم نہ ہو چکی ہوتی. کتنی مرتبہ بہت سے فتنے بھی اٹھے ہیں. آپ نے گوگل میں آیات کچھ سرچ کریں نا پیچھے، آج 2-3 سال پہلے، وہ جو ہے نا kids کو آپ نے جو ہے نا بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ نے بتانا ہے تو ہمارے پاس فلاں کورس ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ آیات انہوں نے غلط لکھی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہر فتنہ اٹھتا ہے قرآن پاک کے خلاف، لیکن وہ دم توڑ دیتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایسی کوئی گرامیٹیکلی مسٹیک نہیں ہے، ایسی کچھ بھی قرآن میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. جو ایسی بات کرتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے، وہ گمراہی والی بات ٹھیک ہے. ہے میم. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کسٹڈی میں. جی میم میں سمجھ ٹھیک ہے گئی اب بالکل. کہ میں یس لاسٹ بات ایڈ میم، کرنا چاہوں جزاک گا، اللہ سوری خیر. مجھے موقع جی مل جاتا ہے تو. اوکے، دیکھیں، مشرکین عرب جو تھے نا وہ بہت اچھی عربی جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے قیامت کے ہونے پہ، مر کے دوبارہ اٹھنے پہ، لیکن گرامیٹیکلی کچھ ایسا اعتراض انہوں نے بھی نہیں اٹھایا کیونکہ وہ عربی، مطلب عربی کے ایکسپرٹ تھے. تو یہ جو مطلب اس وقت یہ اعتراض اٹھایا نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ آ, بس ان کی جذبات میں، بلکہ انہیں خود بعد میں آگے معذرت بھی کی ہے، جذبات میں آ کے فلو میں بہ گئے اور انہیں خود نہیں سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو خیر، اس کے اوپر ہاں، جتنی بھی یہ اس آپ نے وقت. بالکل، یہ آپ نے نا تابوت میں کیل ٹھونکنے والی بات کی ہے بالکل. اس ٹائم کے جو لوگ فصیح و بلیغ ان کی تھی، اگر ایسی کوئی مسٹیک ہوتی تو وہ اعتراض نہ کرتے. بلکہ جب وہ قرآن سنتے تھے نا، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، اب وہ سردار بھی ایسے ویسے لوگوں کو نہیں چنتے ہوتے تھے، وہ سردار اس بندے کو چنتے تھے جو خوبرو بھی ہوتا تھا، جو فصیح و بلیغ بھی ہوتا تھا، جو اشعار بھی اس کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو طاقتور بھی ہوتا تھا، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا تھا، اس کو اپنا سردار چنتے ہوتے تھے عرب اس دور کے. اب وہ سردار جو ہے نا، وہ مطلب آل ان ون، جس میں کوالٹیز ہوتی ہیں نا، شخصیت موسویہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ والے پرسنالٹی کو اپنا سردار جو ہے نا وہ چنتے تھے. اب ایک سردار ہے وہ قبیلے کا، وہ اپنے قبیلے سے کہتا ہے کہ میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایسا کلام پیش کروں گا کہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ اپالوجی کرنی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور وہ بڑا اطراء جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے آپ پیش کریں، آپ کو آپ کا جو کلام ہے وہ پیش کریں سب سے پہلے مجھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا، سبحان اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی اس کے سامنے، اور جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، اس سردار کا جو اس سردار کا جو رنگ ہے وہ پیلا پڑتا جا رہا تھا، زرد پڑتا جا رہا تھا. آپ سے میں بات کر رہی ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کا رنگ جو ہے وہ زرد کس صورت میں پڑ سکتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی وہ کتنے ہی خوف و ہراس کے عالم میں آ سکتا ہے، یا اس پہ ایسی حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے جو اس نے تسلیم کی ہو، ٹھیک ہے، اور اس پہ منکشف ہو جائے وہ حقیقت، تو اس وقت اس کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا کسی کا بی پی لو ہو جائے اس وقت اس کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ رنگ زرد پڑنا شروع ہو گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے آیا تھا؟ لڑنے آیا تھا، ان کو بتانے آیا تھا کہ تمہارا کلام جھوٹا ہے، تم جو چیز لے کے آئے ہو تم جھوٹے ہو، تم کاذب ہو۔ تو اس کا رنگ زرد پڑتا گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کا کلام۔ یعنی آپ اس کو اب لنگوسٹکلی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو پتا چلا کہ یہ وہ کلام ہے کہ انسان ایسا کلام لا ہی نہیں سکتا، اس میں لینگویج کی لنگوسٹکلی گرامیٹکلی کسی طور سے کوئی غلطی نہیں ہے، اتنا پرفیکٹ اور اتنا جو ہے نا خوبصورت کلام ہو ہی نہیں سکتا انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتراض اگر کرنے والے ہوتے تو یہ وہ کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس نے لنگوسٹکلی یا اس اعتبار سے اگر اس نے اگر اعتراض کرنا ہوتا تو وہ کرتے نا وہ لوگ، لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو ایسا کچھ ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں تھوڑے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی ہے، اگر انہوں نے خود اپولوجی کی ہے تمام کے سامنے، تو ہم ان کی جو ہے نا وہ ان کو لیے جو ہے ججمنٹل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو بخشیں اگر انہوں نے یہ غلط بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، آئی تھنک کلاس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں نے کام وغیرہ کرنے ہوں گے اور میں نے بھی کرنا ہے، تو جی کلاس کو اختتام تھینک یو سو مچ۔ اللهم احسن الجزاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سلام، اور میرے لیے دعا کیجیے گا، میرا تھیسس چل رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے، ٹھیک ہے جی، اللہ مع تعالیٰ السلامہ، آمین، آمین، تھینک یو سو مچ۔ یاد رکھیے گا۔ Yeah.